जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Everybody welcome. After a long gap, 1 week of Eid, I hope you really enjoy. Ticket number 5, counter number 453. Ticket number 5, counter number 453, please. अपने अपने मोबाइल ऑफ रखें. Mic should be off, everybody. ये मोहम्मद वकास है, क्या नाम है इसका? ओके. Methods of improving estimate. Which type of method we should use during the projects to count the future matters? If you want to start any work in your field, the father will must ask how much days you will complete, right? Every person will ask how much time is required, how much time is required, and how much time is required. If you go for engineering, everybody will ask how much time you will complete your degree. तो estimate लगाना बहुत जरूरी होता है, because when you submit your project feasibility report, you will also written on that report, I will complete this project on this estimation date or this duration. So what are the methods of improving? We will just discuss about the improving estimation methods, कि हमें कौन कौन से मेथड्स एस्टिमेट के हैं वो उसको यूज़ करने चाहिए जो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकें, क्योंकि एक फ्रेश इंजीनियर का एस्टिमेट और एक एक्सपीरियंस का estimate, you will feel a different. Suppose a project will complete in 20 months. Fresh engineer maybe say we will complete in a 15 month. नया खून है ना, नया नया ताज़ा ताज़ा वो इंजीनियर बना, कहता है जी आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 15 months. But the mature or the experienced engineer will always think before the speak, and he will consult with you the some senior person, then will submit submit report, okay ji I will complete this project within 20 to 21 months. So एस्टिमेशन आपका ठीक होना चाहिए, बट शुरू में हमेशा एस्टिमेट गलत होते हैं. ठीक है जी. इंसान कोई चीज़ खरीदने भी जाए ना कि अच्छा यार बकरा शायद 20,000 का मिल जाए, बट व्हेन ही विजिट टू द मार्केट ऑफ बकरा मंडी एंड ही विल फाइंड आउट कि जी ओहो यहाँ तो रेट ही बहुत अप है, तो उस वक्त भी एस्टिमेट ख़राब हो जाता है. घर से पैसे इतने लेके निकले थे. तो देर आर टू थिंग्स, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए वर्क, everybody should ask and everybody will think about the what is the estimation of this project, or what will be the price of to buy this thing, what is the value of that thing. तो एस्टिमेशन एक इंजीनियर का अगर गलत भी हो जाए तो हाउ वी विल इम्प्रूव इट, वी विल जस्ट read down or we will just see this lecture how to improve the estimation. ठीक है जी, समझ आ गई कि एस्टिमेशन. एक बच्चा मुझे हाँ करके बोल देगा जी ठीक है सर. जी. ओके. अब एस्टिमेशन, आपने चीज़ों को भी खरीदना है और अपने काम भी करने हैं. कोई भी काम 2 दिन का प्रोजेक्ट है, 3 डेज का प्रोजेक्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
work which you are going to start, the number of concern, the number of days is not concern. It will complete in 2 days, or it will complete in 4 days, in month, in a year. But your estimation should be right कि जी हाँ this, क्योंकि if you are running a company, the another team or another party will also running a company. So if I need a work, I will choose the best one company. So you are also running a company. I will also visit and I will also estimate कि जी मुझे बताएं how much time you will require or या how much price of this product. तो एक एस्टिमेशन लेने के लिए मैं आपके पास भी आऊँगा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इफ़ दो चीज़ें ना, इफ़ आई वांट टू समथिंग बाय, अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है, देन आई विल टेक एस्टिमेशन कि जी यहाँ से कितने की मिलती है। देन आई विल गो टू द अनदर पार्टी एंड अनदर शॉप कि जी हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस project, and if I want to something buy to product, तो I will take some estimation. तो अगर आपका estimation बहुत high है, suppose I request to the first party कि please let me know about the time required to complete this project, and you say I will complete in 2 weeks. So I say okay, thank you very much, I will let you know. Then I will go to the second party and I will take estimation. And if he say, I will complete in the 9 days, and you said 2 weeks, so there is a lot of difference because you are going to complete this project before 3 days. तो estimation शायद आपकी ठीक हो, वो जल्दी के चक्करों में कुछ और कर दे। तो जल्दी जल्दी में आपने कोई काम भी खराब नहीं करना, और अगर देर हो गई तो उसकी फिर आपने इसको जस्टिफाई करना है व्हाई इट शुड बी लेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी अपनी जो है ना साख्त, जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आपकी अपनी कंपनी रिनाउंड कंपनी है वेयर यू आर वर्किंग, तो द पीपल शुड नो अबाउट दैट कंपनी। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं, आपका बिहेव एटीट्यूड इज़ वेरी गुड, तो आई विल मस्ट अगेन टू विजिट अगेन एंड गिव यू द प्रोजेक्ट। सो अगर एस्टिमेशन हर चीज़ गलत है तो आई विल नॉट विजिट योर कंपनी। तो this is the part of the syllabus, project management and economics, how you can estimate the things, estimate the projects. That is very most important, क्योंकि यहीं से काम स्टार्ट होना है। अगर आप कहेंगे जी आई विल complete this project in 1 month instead of 2 weeks, so I will immediately say thank you very much, मैं उसी वक्त उठ के चला जाऊंगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब आप कहेंगे ये इसको क्या हुआ, ये मेरा मेरा जो कस्टमर आया था मेरे पास एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों उठ के चला गया। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक प्राइवेट कंपनी में ही चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप किसी जगह काम भी कर रहे होंगे, तो जनरल मैनेजर आपको बुला के कहेगा यार ये मशीन इंस्टॉल करनी है, बताएं कितने दिन लगेंगे। अब लगने में 2 दिन, आप कहते हैं जी मैं 2 महीने लगाऊंगा, वो कहेगा ये कैसा इंजीनियर है। तो एस्टिमेशन बड़ा सोच के जवाब देना पड़ता है, और आपकी अपनी रिप्यूट का भी मसला होता है। रिप्यूट खराब एक दफ़ा हो जाए ना, तो वो वहाँ पर अपने आप को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। किसी कंपनी में बड़ी मुश्किल से जॉब मिली एंड यू गेट अ जॉब ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू गेट अ जॉब, और यू वांट टू मेंटेन योर रेप्यूटेशन कि जी मैं अपनी रेप्यूटेशन ख़राब ना करूँ, वहाँ पर एस्टिमेशन भी लगानी पड़ती है। जैसे सिंपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एक मशीन ख़राब हो गई है, तो प्रोडक्शन मैनेजर उठ के आया, सर जी इंजीनियर साहब कितने बजे मशीन ठीक हो जाएगी। आप फ़ौरन कह देते हैं सर बस 5 मिनट में चल रही है, जी सर बस 10 मिनट में चल रही है, और बाद में पता चला जी वो 5 घंटे बाद भी नहीं चली। तो इसका मतलब आपने ऐसी, वो प्रोडक्शन इंजीनियर कहेगा इसने ऐसी बंक मारी थी कि जी 5 मिनट में चलेगी, इसका एस्टिमेट ही गलत था। तो एस्टिमेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ठीक है जी। जैसे फादर आपको घर में कहे कि कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं पापा बस मैं 10 मिनट में आया है, तो बाद में पता चले कि जी आप आए ही 10 घंटे बाद आए या 5 घंटे बाद आए, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं बाहर जाने देगा, क्योंकि आपका एस्टिमेट जैसे आपने ऐसे ही कह दिया था जी मैं 5 मिनट में आया। तो एस्टिमेशन 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 आपको ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। हर वक्त जिधर भी जाएंगे आपको हर ये एस्टिमेशन आपके माइंड में होगी, ये बात याद रखिएगा। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसकी कॉस्ट, उसका शेड्यूल, उसका स्टाफिंग, उसका रिस्क, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी एस्टिमेशन ऑफ द प्रोग्रेस। जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसका क्या एस्टिमेशन है, आपकी स्ट्रगल, आपका एफर्ट, आपकी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पता चले जी मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी हाई हो गई है, ये इंजीनियर साहब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई जस्ट कंसर्न अबाउट द कॉस्ट, ठीक है। ये शेड्यूल, उसके बाद सेकंड टाइम आता है कि इफ समवन कम एंड रिक्वेस्ट यू हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस कंप्लेन और कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, सॉरी। तो टाइम बाद में पूछेंगे, कॉस्ट सबसे पहले, क्योंकि पैसा सबको सबसे अजीज है। तो आपने अपनी एफर्ट से बताना है कि जी कॉस्ट कितना होगा, कम से कम खर्चा होगा। जारी बात है, गाड़ी खराब हो जाए तो हम सबसे पहले मैकेनिक से ही पूछते हैं यार कितना खर्चा होगा, ठीक है जी। और मोटरसाइकिल खराब हो जाए, थोड़ी सी ट्यूनिंग करवानी हो और छोटे मोटे काम करवाने हो, एंड इमीडिएटली यू विल आस्क यार इसका खर्चा कितना होगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, चाहे वो 3 घंटे में उसने मोटरसाइकिल ठीक करनी है आपकी। तो आई विल जस्ट कंसर्न अबाउट माई मनी, अबाउट माई कॉस्ट, कि मुझे कुछ ज़्यादा महंगी ना पड़ जाए। 3 घंटे के भी या 4 घंटे भी लग जाए तो खैर है। बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो करोड़ों अरबों में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, वहाँ द मेजर टर्म इज कॉस्ट, कि जी मुझे एस्टिमेशन ठीक बतानी है और मुझे कैलकुलेट सही करके बताना है कि हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी इज या हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद देन आता है शेड्यूल, कि जी हाउ मच टाइम यू विल टेक, व्हेन यू विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, व्हेन यू विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। these are the different things। तो कॉस्ट एंड शेड्यूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर में कोई फंक्शन भी है तो 4-5 मेहमानों ने भी आना है, तो फादर ने कहना है अच्छा यार, बेगम ने कहना है, मदर ने कहना है कि जी 5 किलो चिकन ले आए, तो फिर बाप फौरन कॉस्टिंग करना शुरू कर देगा कि खर्चा कितना है मेरा, और कितनी देर पके बनेगी इस चिकन को बनने में, कितनी देर लगेगी इसको सर्व करने में। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना बेसिकली। तो ये सारा काम एस्टिमेशन से हो रहा है कि जी आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, शेड्यूल आप टाइम कितना लेंगे। स्टाफ से मुराद ये है कि मुझे कोई वेटर तो नहीं बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, मैं खुद ही या मेरे बच्चे अरेंज कर लेंगे। इज एनीथिंग डिफिकल्ट फील, ठीक है जी। कोई रिस्क से मुराद ये है कि जी चिकन मार्केट में अवेलेबल ही ना हुआ तो क्या करेंगे, गैस चली गई तो क्या करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग। तो इसी तरह प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको टाइम और कॉस्ट के अलावा कुछ बंदों की भी जरूरत होती है। अब बंदे बीमार भी हो सकते हैं, किसी बंदे की डेथ भी हो सकती है, ड्यूरिंग वर्किंग डेथ हो सकती है, आते जाते पिक एंड ड्रॉप्स में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो स्टाफ कम हो गया। तो एस्टिमेशन आपका फिर खराब हो सकता है कि जी मुझे, मैंने लिख के तो 6 बंदे दिए थे बट मेरे बंदा बीमार रहने लग गया, मुझे एक और बंदा दे दें। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ एस्टिमेशन के हाउ यू विल कंपीट दीज टर्म्स। रिस्क हम वैसे भी बात कर चुके हैं कि रिस्क क्या है, तो आप को रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर चीज़ सोचनी है। बंदों का रिस्क, काम का रिस्क, टाइम का रिस्क, ठीक है जी। प्राइसिंग का रिस्क, प्राइस महंगे हो गए हैं वो भी एक रिस्क है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो हर चीज़ महंगी हो गई। बहरहाल, तो एस्टिमेशन आपकी ये सारी चीज़ें हैं। आपने रिस्क बहुत ज़्यादा लिख के दे दिया, पता चला कोई ज़्यादा रिस्क ही नहीं था, या आपने रिस्क बहुत कम प्रोजेक्ट में लिख के दे दिया कि जी हाँ जो मेरी प्राइसिंग है वो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से +-5% ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बिकॉज रिस्क इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी प्लेस। फिर आपकी काम की रिलायबिलिटी क्या है, वो आप एस्टिमेशन है वो भी एक, कि ये रिलायबल बंदा है या नहीं है। तो लोग आपको उस बारे में भी एस्टिमेशन करते हैं। तो
देखिए रिप्यूट सबसे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्यूट खराब हो गई तो कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा। जॉब खराब हो जाएगी, जॉब आपको मजबूरन छोड़नी पड़ जाती है, यार मुझे तो लोग काम ही नहीं देते हैं, मुझे तो जनरल मैनेजर किसी खाते में नहीं लिखता है, प्रोडक्शन मैनेजर मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी शुरू की बातें एस्टिमेशन सारी खत्म रॉन्ग थी, जिसकी वजह से आपने अपने आप का मोराल, आपने अपने आप को रिप्यूट डाउन की। तो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग पहली दिन की जॉब करते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें सारा काम एस्टिमेशन पर ही चल रहा होता है। तो अगर कोई छोटा फ्रेश इंजीनियर भी आया हो तो प्रोडक्शन इंजीनियर या जनरल मैनेजर कहता है ठीक है इसको काम देखो देखो क्या करता है ये। आपका आप बॉस आपका पास आता है फुल मेंटेनेंस इंजीनियर, कहता है जी बेटा ये कितनी देर लगेगी, तो आप कहते हैं जी 2 दिन लगेगा और इतना खर्चा होगा और मुझे इतने बंदे चाहिए। ठीक है जी, अभी 2 घंटे नहीं गुजरते आप कहते हैं सर 2 बंदे और दे दें, और 4 दिन का टाइम दिया था आप 6 दिन में ख़त्म करते हैं। 2 लाख रुपए आपने काम का बताया था, 1.5 लाख रुपए लगा दिया, तो वो 3 दिन में ही आपकी सूरत हाल सामने आ गई। बड़ी मुश्किल से एस्टिमेशन करनी पड़ती है। आप अगर नहीं भी आप जवाब दे सकते तो आप कह दें सर सॉरी अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अभी कुछ सीखूंगा तो बताऊंगा। वो बढ़के नहीं मारनी, क्योंकि अपने आप को आपने बदनाम कर लिया तो फिर उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एस्टिमेशन हर जगह चल रही होती है, हर वक्त चल रही होती है। ठीक है जी, आपको कोई काम के लिए मार्केट भी भेजे कि जाओ 2 बेरिंग पकड़ के ले आओ या 2 गियर ले आओ मार्केट से उठा के, तो आप कहते हैं जी ठीक है सर मैं बस 2 घंटे तक आया, पता चला जी 2 घंटे में क्या 6 घंटे में आया, शाम तक पता नहीं क्या करता रहा। तो ये भी एक एस्टिमेट है कि आपने टाइम गलत बताया। तो रिप्यूट अगर खराब हो गई तो आपकी जॉब, आपकी फिर इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, आपको हमेशा डर लगा रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी। तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्ट दीज थिंग्स। तो एस्टिमेशन 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 ये सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी हर काम में। और इसको आपने एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर डील करना है, और हर चीज़ की एस्टिमेशन आपने ठीक तरीके से सबको बतानी है, चाहे कॉस्ट हो, चाहे टाइम हो, चाहे नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हो, रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो, आपकी रिलायबिलिटी हो। ठीक है जी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, वट एवर द पीपल इज वांट। आई होप मैंने इसको काफ़ी गहरा एस्टिमेशन को बता दिया है, समझ आ गया होगा। व्हाट इज द कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। अब दो चीजें हैं कि कॉस्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होती है, और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। अब ऐसा ऐसा मैं इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब इतना इसमें है नहीं। कॉस्ट इज a source of sacrifice to achieve a specific objective. Yes, you want to achieve some specific objective. Specific objective mean कि जी मैंने ये 2 दिन में काम खत्म करना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ये 2 दिन में काम खत्म करना है। तो और कॉस्ट उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि हाँ विद इन दिस कॉस्ट आई विल कंप्लीट दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो ये एक ऐसी कॉस्ट जो मुझे और दूसरे को सेक्रीफाइस कर दे कि ठीक है जी जो इसने ये पैसे बताए हैं इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, कि मैं ये 2 बंदे यूज करूंगा उसको इतनी सैलरी दूंगा, मैं ये नंबर ऑफ पार्ट्स यूज करूंगा, जो भी रिसोर्सेज हैं, पार्ट्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, स्किल पर्सन भी हो सकते हैं। और वो इस बात पर सेक्रीफाइड कर जाता है ठीक है जी कि आप ये काम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें, और मैं सेक्रीफाइस करता हूँ आपके साथ ये बिल्कुल आपकी बात को यकीन करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। जो भी आपने उसको कॉस्ट बताई है कि जी मैं इतने पैसों में या इतने बंदों के साथ ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा, तो दैट इज सिंपल है कॉस्ट। एंड कॉस्ट आर यूजुअली मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स लाइक डॉलर एंड रुपीस। ठीक है जी, कॉस्ट जो है वो ऑलवेज मेजर की जाती है आपकी डॉलर्स में या रुपीस में। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स the processes required to ensure that the project is completed within a approved budget. अब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट ये है कि आपने एक बजट अप्रूव करवा के दे दिया कि जी आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, कंप्लीटेड विद इन ए अप्रूव्ड बजट। आपने एक अप्रूव बजट अप्रूव करवा लिया कि जी आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन विद इन द 2 लाख रुपीज। अब उसकी कॉस्ट को मैनेज करना है आपने कि जी मैंने जाया नहीं कर दी नहीं पैसे, मैंने इसको वेस्ट नहीं करना, मैंने इसको बड़ा शायद सारी से पैसे इस्तेमाल करने हैं, बल्कि अगर सेव हो सकते हैं तो सेव करने हैं। तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, कॉस्ट को, हर किस्म की कॉस्ट है, आपने बंदे भी रखने हैं, चीजें भी खरीदनी है, वेजेस भी देनी है, प्रोजेक्ट चल रहा है ना पूरा। तो जो काम आप
अच्छी कॉस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, तो वो कहलाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, तीनों चीजें आ जाती हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, किस चीज की कॉस्ट? प्रोजेक्ट की। और उसको अगर 2 लाख में आपने एक प्रूव बजट करवा के दिया था, आपने अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया है उस कॉस्ट को, तो फिर आप उसको कहते हैं जी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है कि इसने जो मुझे अप्रूव बजट करवा के दिया था वो बड़ा ठीक तरीके से काम किया। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को कैसे प्रोसेस किया जाता है कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट्स को कैसे अप्रूव करके 2 लाख रुपए देते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, उसके क्या प्रोसेसेस हैं? रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्ट बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, वन बाय वन इसको हम, उसमें आगे लिखा हुआ है। रिसोर्स प्लानिंग, अब आप कॉस्ट की एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस कि जी मैं बेरिंग खरीदूंगा, फलां मार्केट से खरीदूंगा, बंदे भी रखूंगा। ठीक है जी, मैं अभी आपने उसको अप्रूव बजट नहीं दिया। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम कि यू डिडंट गिव एनी रिपोर्ट या यू डिड नॉट गिव एनी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। कोई आपने अभी उसको सबमिशन रिपोर्ट नहीं दी, ना उसको जमा करवाई है। So you just calculate कि how much cost is required and you are going to different processes कि जो मैंने अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है तो मुझे डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मेरा बजट अप्रूव भी हो गया और मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट ना की, तो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, मेरी मेरी रिप्यूट खराब होगी। तो पहला वो प्रोसेस वो कहता है रिसोर्स प्लानिंग। आपने ये रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि मुझे कौन कौन से बंदे रखने हैं, मैंने पार्ट्स किस मार्केट से किस जगह से उठाने हैं जिनकी कोटेशन बहुत कम होगी, वैल्यू कम होगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी। बंदे वो महंगे, कोई जनरल मैनेजर नहीं रख लेना, मैं सिंपल का छोटा सा इंजीनियर भी रख के अपना काम चला लूंगा। मुझे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चाहिए जिसको मुझे हैवी सैलरी देनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप प्लानिंग करते हैं कि मैं रिसोर्सेज कौन कौन से कहाँ कहाँ से यूज करूंगा। ठीक है जी, डिटर्मिनिंग व्हाट रिसोर्सेज एंड क्वांटिटीज ऑफ देम शुड बी यूज्ड, कि आप डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि मैं रिसोर्सेज के 2 बंदे यहाँ से लूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, इनकी सैलरी इनको ये दूंगा, उनसे फिक्स करूंगा। फिर आप पूरा प्लान बनाते हैं कि ठीक है जी मैं यहाँ यहाँ से रिसोर्स इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ से पार्ट्स उठाऊंगा, ये वाली गाड़ी यूज करूंगा लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जो भी आपके रिसोर्सेज यूज करने हैं आप उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और आप फिर उसका खर्चा निकालते हैं कि जी कि मेरे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि जी सारे मैंने सोच लिया जी 2 बंदे रखूंगा, 3 बंदे रखूंगा, पार्ट्स यहाँ से उठाऊंगा, और ये जो है मैं मार्केट से कोटेशन यहाँ से लूंगा। गाड़ी अगर अनलोडिंग लोडिंग के लिए मुझे चाहिए होगी, प्रोजेक्ट में बहुत चीजें होती हैं, ट्रक चाहिए, क्रेनें चाहिए, डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। तो मैं आप पूरा एस्टिमेट लगा के बताते हैं कि जी ठीक है मुझे इतना एस्टिमेट होगा। अब अगर रिसोर्सेज में आप कहें जी मैं चाइना के बेरिंग यूज कर लूंगा, मैं चाइना की पार्ट्स यूज कर लूंगा, तो बाद में आपको पता चले कि जी आपने क्यों चाइना की चीजें यूज की हैं, ये तो मेरे से इसने कमिटमेंट नहीं की है। तो आप प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले उससे आप पूछ लें कि जी आपको किस किस्म के पार्ट्स की, इस जैसे किसी ने सीएनजी का स्टेशन ही बनवाना है, ये मार्केट में बहुत लगते हैं सीएनजी, हमारे पाकिस्तान में बहुत सीएनजी के स्टेशन लगते हैं, पिछले 10 सालों में 15-20 सालों में लगे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं भी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पार्ट्स चाइना के लगवाएं या पार्ट्स हम इधर अच्छी कंपनी के लगाएं। तो रिसोर्स की प्लानिंग आप उनसे जिनकी कोई चीज़ या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ऑनर से भी पूछें, मालिक से भी पूछें कि जी आपको किस किस्म की चीज़ें चाहिए, बंदे हम स्किल वाले रखें या नॉन स्किल रखें, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बहरहाल वट एवर। तो वो उससे पूछ के फिर आप कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, फिर आप उसकी बजटिंग निकालते हैं कि जी मुझे बंदों के लिए इतना बजट चाहिए, मुझे पार्ट्स के लिए या मटेरियल के लिए इतना बजट चाहिए, 2 मैंने कंटेनर खरीदने हैं जो लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, उसको मेरी इतना बजट चाहिए। इसको हम कहते हैं कॉस्ट बजटिंग कि जी मुझे बंदों की सैलरी के लिए 2 महीने में मैंने सीएनजी प्लांट पंप चलाना है, तो मुझे इतने बंदे चाहिए, उसकी बजटिंग, उसकी सैलरी इतनी बनती है, वेल्डर इतने हैं, मैकेनिक्स इतने हैं, बहरहाल जो भी होंगे वहाँ पर कंप्रेसर मैकेनिक का भी होगा। तो उसके बाद फिर पार्ट्स, पाइप यहाँ से उठाऊंगा, आखिर सीएनजी वो सिलेंडर यहाँ से उठाऊंगा, ये सारा आप बजटिंग करते हैं। पहले का रिसोर्स कर लिया कि कहाँ कहाँ से उठाना है, फिर एस्टिमेट लगा लिया, फिर उसकी बजटिंग कर ली कि जी यहाँ यहाँ से मैंने चीज़ें उठानी है और ये टोटल इतना खर्चा होगा, कि बंदों का खर्चा इतना है, पार्ट्स का खर्चा इतना है, कंटेनर और उसके अनलोडिंग लोडिंग का खर्चा इतना है, फिक्सिंग का खर्चा इतना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं।
और फिर उसको आपने अंदर, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो उसको अंडर कंट्रोल रखना होता है। एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा, आपको 10 मिनट रह गए, मैंने ख़त्म करना है। और एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए वो कुछ टूल्स और टेक्निक आपको बता रहा है कि आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट जब करके बताते हैं कि मुझे सीएनजी पंप को एक प्रोजेक्ट जो मुझे दिया गया है, तो मैं उसको कैसे एस्टिमेट करूं, तो उसमें आपको वो कहता है जी कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। तो उसमें हमने आप पढ़ा भी था, आपको याद होगा, टॉप डाउन एंड बॉटम अप एंड बॉटम टॉप डाउन। ऊपर से नीचे शुरू कर लें, किसी के पास जाके पूछ लें कि यार ये पूरे पंप में, ऑनर से पूछ लिया, दूसरे ऑनर से पूछ लिया कि अगर आप एज इंजीनियर नया प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी से जाके पूछते हैं कि यार मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन की रिपोर्ट अपने इस बंदे को जमा करवानी है, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। तो आप किसी पंप वाले के पास चले जाएं, वो उसके ऑनर से मिले, उसे कहें जी टोटल कितना खर्चा आया। तो इसका वो कहेगा जी मेरा 2 करोड़ रुपया खर्चा आया या 1 करोड़ रुपया खर्चा आया, जो भी है। तो इसका मतलब है आप टॉप से शुरू हुए हैं और अब टॉप से खर्चा बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। या आप अगर नीचे से शुरू होना चाहते हैं, बॉटम से, तो आप सबसे पहले पार्ट्स की लिस्ट इकट्ठी करें कि जी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगने हैं, कौन कौन से बंदे चाहिए। फिर आप नीचे से शुरू होंगे। ठीक है जी। तो अब ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप जब फील्ड में जाएंगे, जॉब करेंगे, तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे कि जी मैं एस्टिमेशन ऊपर से नीचे अच्छी रहती है इस काम में, या नीचे से ऊपर की एस्टिमेशन रहती है, वो आप जमा करवाएं। तो पता जरूर होना चाहिए कि एस्टिमेशन टॉप टू डाउन भी हो सकती है, इसको हम एनालॉग्स कहते हैं, और बॉटम टू अप भी हो सकती है। और अगर कोई मैथमेटिकल मॉडल है, ना को वो टॉप टू डाउन है, ना को बॉटम अप है, सिर्फ आपको एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, सारे रिसोर्सेज पुट करते हैं, बंदों की स्किल्स कौन कौन से रखने हैं वो रखते हैं, कोई मॉडल है मैथमेटिकली जिससे आप कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हम उसको पैरामीट्रिक कह देते हैं। ठीक है जी। अगर आप ना टॉप टू बॉटम यूज करें, ना बॉटम टू टॉप यूज करें, तो और एक सिंपल कोई मॉडल यूज कर लें कैलकुलेशन का, एस्टिमेशन का, तो उसको हम पैरामीट्रिक कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड स्केजुलिंग, ये भी मैंने आपको सारा बता दिया। प्लान करना है, एस्टिमेट करना है, और फिर स्केड्यूल करना है। प्लान में आपने सारी एक्टिविटीज शो करनी है कि मैंने कौन से पार्ट्स किस जगह से उठाने हैं, किस तरह फिट करने हैं, कौन सी चीज़ पहले लगेगी, ये एज इंजीनियर आप सबको पता होता है। और कोई स्पेसिफिक स्टार्ट डेट और एंड डेट्स क्या होंगी। ठीक है जी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेट स्पेसिफिक बताएं, आज स्टार्ट करेंगे तो आज की डेट के हिसाब से काम शुरू हो जाएगा, 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे तो 2 दिन बाद के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। एस्टिमेशन के लिए आपको डिटरमिन करना है साइज, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ये मैं इस साइज को, जो ड्यूरेशन का जो साइज है, वो कितना बड़ा कर सकता हूँ, प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ, मुझे पास कितनी लिमिट है। और शेड्यूल में आपने मुख्तलिफ तारीखें देखनी है, रिसोर्सेज देखने हैं, लोगों के रिलेशनशिप भी हैं। जैसे अगर आपके पास बंदे शॉर्ट हो जाएं, मार्केट से भी कोई टेक्निकल का बंदा, कोई अच्छा टेक्निकल पर्सन ना मिल रहा हो, तो हम फिर रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि यार मैंने इस शेड्यूल में ये काम ख़त्म करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दूसरे इंजीनियर जो क्लास फेलो हैं उनके साथ ग्रुप बनाया हुआ है आपने व्हाट्सएप का, वो आप ताहयात कायम रखें। ये नहीं है कि 4 ईयर इंजीनियरिंग हो जाए और आप ग्रुप में से ग्रुप को छोड़ के चले जाएं। किसी भी वक्त कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप किसी भी इंजीनियर को 3 साल बाद पूछ सकते हैं, यार तुम किधर जॉब कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे इस किस्म के कुछ टेक्निकल बंदे चाहिए, क्या तुम्हारे पास हैं, मुझे मार्केट से मिल नहीं रहे हैं। तो टाइम फिर ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो आप रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीनियर से अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। किसी फर्स्ट जॉब आप कर रहे हैं, जॉब के दौरान आपने बॉस के साथ बड़े अच्छा रिलेशनशिप है, उसके साथ मेल जोल रखें। ईद पर उसको ईद मुबारक दें, उसके घर भी साल में एक दफ़ा जाना पड़े, जाओ चले जाएं। और 2 साल बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं, तो फिर भी उसके साथ इन टच रहें कि क्योंकि जी सर ठीक है, मुझे जॉब तो अच्छी मिल गई है, लेकिन मैं आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा रिलेशनशिप रखूंगा। तो मेरे पास भी 15 साल के तमाम इंजीनियर्स के नंबर, तमाम बॉसेस के नंबर अभी भी मौजूद हैं, और अक्सर औकात हमारी मुलाकात भी होती रहती है, और अक्सर औकात व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं पुरानी कंपनियों के साथ। तो रिलेशनशिप स्ट्रांग रखने का मकसद ये होता है कि मुश्किल वक्त में, कोई ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ काम आ जाए। हाउ टू शेड्यूल। ठीक है जी। ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाएं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। आइडेंटिफाई करें हाउ मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। हर चीज़ को अच्छा आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क, ग्राफ, नेटवर्क डायग्राम। जितनी भी आपने अगर ग्राफ कुछ चीज़ें बनानी है, उसमें शो करें कि जी मैं ग्राफ के मुताबिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, नहीं करूँगा, अब ग्राफ किधर जा रहा है, मैं डिले डिले तो नहीं हो रहा।
ठीक है जी। और नेटवर्क डायग्राम इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। एस्टिमेट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क टू बी डन, हर रोज एस्टिमेट करें कि जी मुझे अगर दो महीने का प्रोजेक्ट था तो एक महीने में कितना काम कंप्लीट करना था, मैंने कंप्लीट किया भी है या नहीं किया है, या मैं कितना पीछे हूँ या कितना आगे हूँ। ठीक है जी, उसको भी एस्टिमेट करें कि जी एक हफ्ते में जितना मैंने एस्टिमेट लगाया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन, ये भी वही चीज है जो पहले मैंने आपको बताई कि द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इन ऑल फेजेस, कितने बंदे किस किस जगह किस किस टाइम मुझे चाहिए, वो आपने उसकी एस्टिमेशन लगानी है। प्लानिंग एंड एनालिसिस आर परफॉर्म बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, आर्किटेक्चर डिजाइन बाय लार्ज एंड सॉफ्टवेयर स्टाफिंग एस्टिमेशन लार्ज स्केल। अगर आपको कोई लंबे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, कोई आर्किटेक्चर इंजीनियर चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हर किस्म की आपको स्टाफिंग करनी पड़ती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कुछ अगर आपको कोई चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, सिस्टम की टेस्टिंग करनी है तो कितने नंबर बंदे चाहिए, सब आपको स्टाफ लेवल की एस्टिमेशन करनी पड़ती है। मेंटेनेंस में रिक्वायर फॉर पर्सनल बट द नंबर शुड बी डिक्रीज इन द शॉर्ट टर्म, और जब आपका प्लांट स्टार्ट हो जाता है तो कुछ मेंटेनेंस के बंदे भी आपके पास होने चाहिए जो उस प्लांट को मेंटेन करने चाहिए, तो आप एक या दो रिकमेंड करके जाते हैं कि जी ठीक है इस बंदों को आप हमारे स्टाफिंग में आप परमानेंट तौर पर रख सकते हैं। वो भी आप उसको एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि जी आपको प्लांट मेंटेनेंस के लिए भी एक या दो बंदे चाहिए। रिस्क की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, रिस्क एंड ऑड्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब हाउ मच परसेंटेज यू विल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन द डेज। आपने 2 महीने कहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी परसेंटेज के चांसेस हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं सारा उस रिपोर्ट में लिखें। ऑड्स कौन कौन से हैं, यानी रुकावटें कौन कौन सी हैं, वो आपको इवेंट्स वो सारे कुछ आप उसमें लिखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, कितनी परसेंटेज हो सकती है, कितना रिस्क हो सकता है, और कितनी चांसेस हैं कि हम प्रोबेबिलिटी से हट सकते हैं। रिस्क कौन कौन से हैं वो सारा उसको आप आइडेंटिफाई करें कि जी मैं इस काम के रिस्क के लिए उसको 1 रेशो दूंगा, ये काम बहुत फेज बड़ा टफ शुरू हो गया है, मैं जी इसको रिस्क 10 पॉइंट दूंगा। तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हर चीज़ लिखते हैं कि मैं शुरू के फेजेस में मेरी प्रोबेबिलिटी 100% इंशाल्लाह रहेगी, कोई इसमें प्रोपोर्शन नहीं आएगा। और जब मैं इसको अपना इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा प्रोग्राम को और प्लांट को, तो फिर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चांसेस ये हैं कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है प्लांट के स्टार्ट होने की वो 2%, 3%, 4%, 10% है कि स्टार्ट ना हो, तो फिर मुझे कुछ और चांस लेना पड़ेगा काम करने का। तो इस तरह रिस्क, ये पूरा टेबल भी उसमें बनाते हैं, आप पूरा एस्टिमेट रिस्क लिख के देते हैं कि जी मुझे इतनी इसमें 2 पॉइंट पर 0 का मतलब कोई रिस्क नहीं है और 10 का मतलब बड़ा खतरनाक रिस्क है जो मुझे इससे क्रिएट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडेज लेक्चर। फटाफट कैमरा ऑन करें, मैं अटेंडेंस ले लूँ और चैटिंग में आप अपनी अटेंडेंस लगा दें। वी हैव ओनली 1 मिनट। पार्टिसिपेंट्स 13, लास्ट बच्चा जिसने 07 जिसने अटेंडेंस लगाई है। सर 2 बच्चों ने कैमरा ऑन किया, जल्दी करें जल्दी करें। चले ठीक है, 35 और 14 ने भी लगा दी है, इसके अलावा तो कोई नहीं। आप ओके, टेक केयर, सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।